Hello everyone, my name is Jyoti Upadhyay and welcome to Rooted, a channel dedicated to provide quality guidance for history optional. Now, on this channel, we are covering the major topics of history optional through PYQs. And the PYQ that I'm going to discuss today is very interesting because this PYQ tests not just your understanding of the Vedic period, but also it tests whether you know or not how sources basically work. मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्स किस तरीके से काम करते हैं, लिटरेरी सोर्सेस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है. So let us first read the question. The question says, archaeology knows no Aryans, only literature knows of Aryans, examine critically. Now, before I delve into this question, let us use some common sense. The first portion of the question says, archaeology knows no Aryans. अब अगर वैदिक पीरियड के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो पता होगा कि आर्यंस का टेंटेटिव पीरियड था फ्रॉम 1500 BC टू अराउंड 500 BC. Now, do you think that a period this long, people who stayed in this period for this long, हमें उनके बारे में कुछ भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला होगा? Is it possible? It's not possible because कुछ ना कुछ तो मिला होगा ना, चाहे हमें पॉटरी मिले, चाहे उनके वेपन्स मिले, चाहे उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर्स मिले, कुछ ना कुछ तो हमें मिला ही होगा इसके बारे में. So we know in one way that this particular first part, archaeology knows no Aryans, ये absolutely correct नहीं है, ठीक है. It's not an, even though it's an absolute statement, but then this might be partly correct, but this is not completely correct. Next is only literature knows of Aryans. अब जब पहले वाला पोर्शन जो है when we know कि हाँ archaeology knows of Aryans, तो सेकंड वाला तो ऑटोमेटिकली डाइल्यूट हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट. नेक्स्ट थिंग इट सेज इज क्रिटिकली एग्जामिन. नाउ दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिटिकली एग्जामिन जब बोल रहे हैं, दिस विल सेट द टोन ऑफ द और हाउ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर द आंसर. For example, it can say comment, it can say discuss, it can say critically examine. पिछले वीडियो में I have explained about the nature, the urban character of the Harappan civilization, and in that question, it was said comment. तो comment में कैसे स्ट्रक्चर करना है अपने आंसर को मैंने उसमें बताया हुआ है. क्रिटिकली एग्जामिन जब लिखा हुआ है तो इसमें what it means is कि you have to discuss whatever statement has been given. You have to write in the answer all the aspects that are there. Various angles जो उस स्टेटमेंट के हैं वो सारे एंगल्स हमें लिखने हैं और हमारा जो कंक्लूजन होगा उसमें वी हैव टू गिव आवर पर्सनल ऑब्जर्वेशन. ओके, बिकॉज इट हैज सेड critically examine. So you have to mention all the aspects related to the statement that has been given and give your own opinion or observation in the conclusion. Understood? Now let us first see what introduction should have been written in this question. अब since ये एक ऑप्शनल पेपर है उसमें इतना बेसिक आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है that when you read about the Vedic period you know कि debate whether the Aryans belong to India or whether they came to India from outside, that is debate regarding the origin and original homeland of the Aryans exist, right? So this particular statement is used इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट डिस्कशन. मतलब लोग जब भी इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि ओरिजिन एंड ओरिजिनल होमलैंड ऑफ द आर्यंस, तब वो इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं, ठीक है. दैट इज आर्कियोलॉजी नोज नो आर्यंस, ओनली लिटरेचर नोज ऑफ आर्यंस. ये उस कॉन्टेक्स्ट में है. सो इंट्रोडक्शन क्या होता है ना, इट्स काइंड ऑफ आई एम गिविंग द एग्जामिनर एन आइडिया दैट आई हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. सो इंट्रोडक्शन में मुझे सबसे पहले तो इसका कॉन्टेक्स्ट मेंशन करना होगा एंड देन आई हैव टू लेट द एग्जामिनर नो दैट आई ऑल्सो नो कि लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं उनमें एक मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस होता है. मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस ऐसे सुनने में भारी वर्ड लग रहा है, ऐसा कुछ है नहीं. मेथोडोलॉजिकल डिफरेंस मतलब होता है कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज काम करते हैं. मतलब हो गया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो हैं वो किस चीज़ को स्टडी करते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दे स्टडी मटीरियल रिमेन्स. मटीरियल रिमेन्स यानी कि वो चीज़ें जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं. इट कैन बी पॉटरी, इट कैन बी जो old monuments के structures, it can be weapons, it can be some tools that were used by the people, ठीक है. तो these are material remains. इनको आर्कियोलॉजी स्टडी करता है. लिटरेचर स्टडी करता है ऑन द अदर हैंड्स ह्यूमन थॉट्स से जो लिखे गए चीज़ें हैं. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि लिटरेचर में लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये लोग, फॉर एग्जाम्पल ये लोग जो थे ये आर्यन थे. लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में किसी पॉटरी पे तो ये नहीं लिखा होगा ना कि ये जो पॉटरी है इसको आर्यंस ने बनाया था, ये जो मॉन्यूमेंट है ये आर्यंस को बिलोंग करता है, ऐसे लिखा नहीं रहता है. ये जो वेपन है, दिस वेपन कैन नॉट बी कंक्लूसिवली सेड दैट दिस बिलोंग्स टू द और दिस वाज यूज्ड बाय द आर्यंस ओनली.
फॉर एग्जाम्पल आज लेट अस अज्यूम कि हमारे घर पे स्टील का बर्तन यूज हो रहा है, ठीक है। अब स्टील का बर्तन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही घर पे यूज हो रहा है। स्टील का बर्तन कैन ऑल्सो बी यूज मे बी इन समवन्स हाउस विच इज बेस्ड इन यूरोप। ओके, सो वी कैन से कि स्टील के बर्तन जो लोग यूज कर रहे हैं मे बी कि उनका वे ऑफ लाइफ या उनका लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन आर्कियोलॉजी ये नहीं बता सकता कि जो स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं वो लोग इंडियंस ही हैं, या जो स्टील के बर्तन यूज कर रहे हैं वो लोग वेस्टर्नर्स ही हैं। समझ में आ रहा है? तो दिस लॉजिक इज गोइंग टू बिकम मोर क्लियर एज वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. So our task in the introduction is to let the examiner know that yes, we know this nuances. So I have tried to write a model introduction, but the best introduction is going to be written by you. Okay, so let us first read. In this introduction I have written, the statement is used while referring to the debate on the origin and original homeland of the Aryans. The statement also points to the methodological difference between archaeological and literary sources. While literary sources like the Vedas explicitly mention the term Arya, ये possible है literature में to explicitly mention the term Arya, और हमारे वेदास में especially ऋग वेदा में आर्य वर्ड जो है वो यूज भी किया गया है, belonging to the Sapt Sindhu area. Archaeological excavations do not clearly show a culture called Aryan culture. Thus, many historians argue that archaeological knows no Aryans. ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा whole introduction. Next we will move to the body. Now how you are going to structure the body is, सबसे पहले जो हमारा आर्कियोलॉजी वाला पार्ट है, सो हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे, दैट इज मेंशन, फॉर एग्जांपल मेंशन ऑफ आर्यंस इन आर्कियोलॉजी. फिर वी विल मेंशन ऑफ आर्यंस इन दिस लिटरेरी सोर्सेज, एंड देन वी विल ट्राई टू कोरिलेट देम एंड गिव अ कंक्लूजन. सो यहाँ पे व्हेन वी सी अबाउट द एब्सेंस ऑफ आर्यंस इन आर्कियोलॉजी, इज इट रियली एब्सेंट? सो यहाँ पर हमने बोला है कि आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाइज कल्चर्स एंड नॉट एथनिक ग्रुप्स. वेरी इंपॉर्टेंट. आर्कियोलॉजी क्या करता है, आर्कियोलॉजिकल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दे स्टडी द वे ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. हरप्पन सिविलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल, हमें वहां से क्या मिला है, हमें फॉर एग्जाम्पल हरप्पा का पॉटरी मिला है, हमें ड्रेनेज सिस्टम मिला है, हमें वहाँ के एक्सकवेट करके उनके टाउन प्लानिंग के बारे में पता चला है, हमें उनके टॉयज के बारे में पता है, उनके फिगरेंस के बारे में पता है. बेस्ड ऑन दिस हमने इमेजिन किया है कि अच्छा हरप्पन कल्चर जो है, कल्चर एज इन वे ऑफ लाइफ, हरप्पा के जो लोग हैं, एंड हरप्पा इज अ प्लेस, तो हरप्पा के जो लोग हैं या उनके लोगों का ये लाइफस्टाइल कलेक्टिवली हो सकता है, उनका ऐसा लाइफस्टाइल होगा. सेम आइटम्स अगर सेम तरीके से हमें कहीं और मिला है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस अज्यूम लोथल में मिला है या फिर हमें राखीगढ़ी में मिला है, सो वी कैन से बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन मे बी द हाउसिंग स्ट्रक्चर्स, इन ड्रेनेज पैटर्न, इन पॉटरी एंड टेराकोटा फिगरेंस, हम बोल सकते हैं कि इनका कल्चर और जो लोग रह रहे थे इनका कल्चर ये सेम है, तो हो सकता है दोनों सेम ग्रुप को बिलोंग करते होंगे. समझ में आया? लेकिन ये आर्कियोलॉजी जो है ये हमें ये नहीं बोल सकता कि ये मतलब ये हरप्पन्स ही थे. और हरप्पा नाम किसने दिया है? हमने हरप्पा का नाम दिया है बिकॉज द फर्स्ट प्लेस टू बी डिस्कवर्ड वाज हरप्पा. वी डोंट नो वेदर हरप्पन्स कॉल्ड देमसेल्व्स हरप्पन्स और नॉट. Understood? So that's what the angle of culture here means. So archaeology identifies culture and not ethnic groups because archaeology reconstructs the past through material remains. Okay, these remains do not directly reveal language or identity. Very important. For example, pottery techniques and traditions, settlement patterns can spread throughout trade or through trade or imitation, not necessarily through migration. अब हो सकता है कि जैसे पॉटरी है या किसी टाइप ऑफ वेपन है, तो हो सकता है कि आर्यंस भी, जो जिन ग्रुप्स को हम आर्यंस के संग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हो सकता है वो भी उसको यूज करते हो. साइमल्टेनियसली उसी पीरियड में कोई दूसरा ग्रुप हो जो कि आर्यन के ग्रुप से नहीं बिलोंग करता हो सकता है वो भी उसको यूज कर रहा हो. सो टू से कि जितने भी लोग इसको यूज कर रहे थे ऐसे पॉटरी को वो सब आर्यंस हैं, दैट वुड बी रॉन्ग. ओके, दैट आर्कियोलॉजी कैन नॉट डू. बट वॉट इट डेफिनेटली कैन डू इज कि हमें जिस तरीके से वैदिक लिटरेचर में पता है, अब आगे हम देखेंगे वेदास में क्या बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल अर्ली वैदिक पीरियड में एक सेटल्ड लाइफस्टाइल था, रूरल काइंड ऑफ लाइफस्टाइल था. एक फॉर एग्जाम्पल और कलर पॉटरी यूज होता था. उसके बाद क्या है, और कलर पॉटरी हो गया, वो काइंड ऑफ उनका फूड हैबिट्स हो गया, जिस तरीके के टूल्स वो यूज करते थे. तो ये अगर हमें पता है अबाउट द आर्यंस फ्रॉम द लिटरेचर, लिटरेरी सोर्सेज, एंड कोई आर्कियोलॉजिकल अगर हमें फाइंडिंग भी मिला है जिसमें सेम चीज़ों के बारे में बात की गई है, तो वी कैन से कि अच्छा ये हो सकता है यहाँ पे आर्यंस होंगे. समझ में आ रहा है? लेट अस रीड, इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू.
Thus, archaeologists speak of archaeological cultures rather than ethnic groups. Rig Veda points that Aryans had a pastoral economy, horse, chariot, tribal population, and spatial and sacrificial rituals. However, no archaeological assemblage clearly corresponds to these features. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऋग वेदा में आर्यंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है. उनको डिस्क्राइब किया गया है एज पीपल जिनका पेस्टोरल इकोनॉमी था, यानी कि वो लाइफस्टॉक पे डिपेंडेंट थे. पेस्टोरल इकोनॉमी, दे यूज टू यूज हॉर्स, दे यूज टू यूज चैरियट, दे यूज टू हैव अ ट्राइबल, देयर लाइफस्टाइल वाज मोर ऑफ अ ट्राइबल पैटर्न, एंड उनके सैक्रिफिशियल रिचुअल्स थे. अब आर्कियोलॉजी में हमें कोई सिंगल साइट या कोई सिंगल प्लेस ऐसा नहीं मिला है जहां पे हमें ये सारी चीजें मिली हो. ठीक है, इसलिए हम कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी कल्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं कि ये आर्यन कल्चर है. किसी साइट में कुछ चीजें मिली हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी साइट में हो सकता है हमें हॉर्स चैरियट मिला हो, लेकिन वहां पे फिर हमें सैक्रिफिशियल रिचुअल वाली चीजें नहीं मिल रही हैं. हो सकता है कहीं पे हमें हॉर्स चैरियट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन के ट्रेसेस मिले हों आर्कियोलॉजिकल, बट वहां पे पेस्टोरल इकोनॉमी के हिंट नहीं मिले हैं. दैट्स वाई आर्कियोलॉजी हैज नॉट बीन एबल टू रीच टू एनी स्पेसिफिक culture and say that this culture was an Aryan culture and it belonged to this time period. Understood? Now, attempts to link. अब मैंने बोला कि कुछ कल्चर्स हैं जिसमें कुछ कॉमन चीजें हैं, ऋग्वेदा में जैसे मेंशन किया गया है, कुछ हैं जिसमें कुछ कॉमन मिला है जैसे ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है. इस तरीके के हमें 3 कल्चर्स मिलते हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन बिकॉज क्रिटिकली एग्जामिन बोला है तो इन तीनों के बारे में भी वी हैव टू मेंशन हियर. So some historians like Mortimer Wheeler and B.B. Lal have tried to correlate archaeological cultures such as Orc color pottery culture, painted grey ware culture with the Indo-Aryan culture. कैसे? पहला वाला हो गया लेट हरप्पन कल्चर. कुछ लोग बोलते हैं कि हम लेट हरप्पन पीरियड में, कुछ लोग एज इन कि कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बेसिस पे ऐसा बोलते हैं कि लेट हरप्पन पीरियड में जो हमें फीचर्स या जो हमें लाइफस्टाइल देखने को मिलता है वैसा सिमिलर लाइफस्टाइल हमें आर्यंस का भी देखने को मिलता है, जैसा कि वेदास में या लिटरेरी सोर्सेज में डिफाइन किया गया है. दैट्स वाई मे बी दैट लेट हरप्पन कल्चर के टाइम पे जो लोग थे वी कैन एसोसिएट देम विद द आर्यंस, राइट. बट दिस स्टेटमेंट इज मोस्टली रिजेक्टेड. वाई? बिकॉज हमें पता है कि जो हरप्पन्स थे, लेट हरप्पन कल्चर, दे वर मोर ऑफ एन अर्बन लाइफस्टाइल कंपेयर टू अदर्स, right? Next is Orc color pottery culture. This is very important. Orc color pottery culture कहाँ मिला है? गंगा यमुना एरिया में मिला है. The Ganga Yamuna Doab area sometimes been linked to the early Aryans because of features like rural settlement. मतलब Orc color का pottery जो लोग यूज करते थे, जहां जहां से ये pottery मिला है, तो उन लोगों उस पॉटरी को स्टडी करके वहां के जो बाकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उसको स्टडी करके ऐसा लगता है कि यहाँ जो लोग रहते थे उनके दे हैड अ रूरल सेटलमेंट, दे यूज टू यूज ऑर्क कलर्ड पॉटरी, दे ऑल्सो हैड सम कॉपर होड्स. आर्यंस हमें पता है कि दे हैड कॉपर वेपन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वेपन्स कंपेयर टू द हरप्पन्स. सो कॉपर वॉज काइंड ऑफ रिलेटिवली दे न्यू अबाउट कॉपर. सो इट इज बेस्ड ऑन दीज 3 थिंग्स. ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग ऑर्क कलर पॉटरी यूज करते हुए साइट्स हैं, जो ये लोग थे, ये लोग आर्यंस थे. बट इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. सबसे ज्यादा कंक्लूसिव एविडेंस जिसका हमें मिलता है वो है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर. यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, वेयर यहाँ पे मतलब हो गया पॉटरी. यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं अपर गंगा यमुना रीजन में जो लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग पेंटेड ग्रे कलर के पॉटरी यूज कर रहे थे. अब अगर ये जो लोग हैं इनका लाइफस्टाइल कैसा था, जो भी वहां से आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिला है उससे हमें पता चलता है कि देयर लाइफस्टाइल was similar to the lifestyle that has been described in the Vedic period. Not just that, इस पर्टिकुलर जगह में ना जो लोग पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी जहाँ से मिला है वो जगह है फॉर एग्जाम्पल हस्तिनापुर की जगह से वहाँ पे मिला हुआ है. अब हस्तिनापुर जो जगह है उसका महाभारत में भी मेंशन है, एंड महाभारत ऑल्सो इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू द आर्यंस. सो दे आर सेइंग कि ये जो पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर यूज करने वाले जो लोग हैं, दीज पीपल वर आर्यंस. ठीक है, सो आर्कियोलॉजी नोज आर्यंस, ये यहां से भी एक तरीके से इन्फर किया गया है. बट देन अगेन दीज आर ऑल, हम स्पेसिफिक इसको कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मान सकते हैं, लेकिन क्या है, इनके संग हमें सिमिलैरिटी देखने को मिला है. ओके, सो टू से आर्कियोलॉजी नोज नो आर्यंस इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट we will see the address the second part of the question, that is reference of Aryans in literary sources or literature. So यहाँ पे we have seen the concept of Aryan emerges primarily from the Vedic literature, especially the Rig Veda. उसके बाद हमने बोला है the term Arya in the Rig Veda denotes a cultural identity contrasted with the Dasas and Dasyus. ठीक है, ये
अगर ये बहुत बेसिक है, इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस एंटायर थिंग तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू नो कि दासास एंड दस्यूज कौन से, दासास एंड दस्यूज वर मोस्टली नॉन आर्यन पीपल who were either defeated by the Aryans and enslaved. तो इस तरीके से हम उसको दासास दस्यूज वगैरह हम बोल रहे हैं, ठीक है, उनको. दे वर नॉन आर्यन पीपल. तो हो सकता है कि द वर्ड आर्य वॉज यूज्ड टू शो दैट वी आर डिफरेंट पीपल कंपेयर टू दीज पीपल. On the other hand, there are also people like, for example, Max Muller, William Jones. They say कि आर्यंस जो है वो रेस तो है ही नहीं. इट इज पार्ट ऑफ अ लिंग्विस्टिक ग्रुप, लैंग्वेज ग्रुप, जिसको हम बोल रहे हैं इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस. यानी कि एक लैंग्वेज ग्रुप है जिसमें 7 लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत, पर्शियन, सेल्टिक, गॉथिक, जर्मन, लैटिन. ठीक है, तो इन सारे लैंग्वेजेस में काफी कुछ सिमिलैरिटीज देखने को हमें मिला गया है. तो संस्कृत इज ऑल्सो वन ऑफ देम. सो मे बी दीज आर्यंस, जिसको हम आर्यंस बोल रहे हैं, हो सकता है कि एक लैंग्वेज ग्रुप हो जिसके कुछ लोग जो है वो इंडिया की तरफ माइग्रेट करके आए हो, कुछ लोग जो है जो यूरोप की तरफ गए. ठीक है, सो ये अलग एस्पेक्ट हो गया. बट फॉर नाउ we come to know about all of these things from the Rig Veda, that the Aryas, it denotes a cultural identity contrasted with Dasas and Dasyus. Scholars like, वो already मैंने बता दिया, ये वाला Indo-European language family. However, the Rig Veda is not a historical chronicle. Very important. Rig Veda जो है वो history book नहीं है, वो एक history writing नहीं है. It is a collection of hymns. वहाँ से we have extracted our historical knowledge, right? So hence it is difficult to match its exact geography या exact chronology with archaeological cultures. Okay, thus now we come to the conclusion. Thus the statement seems to be partly correct considering archaeology does not directly identify any ethnic group or linguistic community, ठीक है, as Aryan, but the statement also has some limitations because archaeology does provide a context for societies described in the texts. मतलब भले ही सीधा से वो आर्यंस के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन आर्कियोलॉजी डेफिनेटली हमें हेल्प कर सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए वो कल्चर्स जो कि आर्यन कल्चर्स हो सकते हैं. अगर आपको इतना लंबा चौड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना है, सो आई हैव मेंशन्ड अ सिंपल कंक्लूजन एज वेल. That is, we can simply write, thus archaeology may not know Aryans but helps reconstruct the socio-economic background of the Vedic society. Understood? So सुनने में भले ही ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा लग रहा था, but this is a very easy question and it just requires little thorough understanding of the topic. Okay, so I hope I was able to help you in this. For notes, go and visit my Telegram channel. Join the Telegram channel also for daily updates and targets, and do subscribe to the channel, and thank you so much.